हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे आईज़ के बारे में, और जो कि है हमारी क्लास 10th चैप्टर 11, जिस चैप्टर का नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सो वील बिगिन विद द आई, राइट। तो जो आई जो है, हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और इसके फंक्शन, वेरियस पार्ट्स के। सो एज़ वी नो दैट कि जो आई है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, वन ऑफ द 5 सेंस ऑर्गन, जो कि हमें विच हेल्प अस टू सी द थिंग्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस। एंड आई थिंक आई गिव्स अस it's that much power to see the world, and it's a very important and a blessed organ. It's a very sensitive organ, and I hope you all take care of your eye and don't not overburden your eye with lots of usage of mobile or any unnecessary thing. You can use a mobile when it is necessary, but when you think that it's not necessary to do anything else, then you can go out and play, which will keep you healthy. And of course vitamin C is very important, and of course vitamin A for the eye is very important, so keep on consuming vitamin A enriched food. So let's begin our discussion. Here you see this diagram, it's a eye. So first thing you have to focus on is the cornea. Cornea is the outermost part of the eye, which is also known as the window of the eye, through which light enters. Like, see, this is the cornea, outer covering, and it is the surface through which the light enters, and it is known as the window of the eye. Of course आपकी विंडो से भी लाइट एंटर करती है, वैसे ही आई की जो विंडो है वो है कॉर्निया. And then we have after cornea we have pupil, and which is towards which the light enters after the cornea. And what, pupil जो है वो अपनी साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करते रहता है. when we are in a region which is full of light, then it constrict, it becomes smaller, so that it allow a less amount of light whichever is necessary for our vision to enter. But जब हम अंधेरे कमरे में होते हैं तो it becomes wider, and so that it can attract more light and make a clear picture out of it. So in light it constrict, it becomes smaller, and at dark region it becomes wider. Okay, after cornea the light enter pupil. And there is a iris which holds the pupil. As you can see, its iris is a muscle, and it helps to hold this pupil, and it helps to increase and decrease its size. Okay, iris help the pupil, all right. And then we have the crystalline lens, which is here it is situated. The crystalline lens is an area. You can see here it is written the crystalline lens merely provide the finer adjustment of focal length. तो ये जो लेंस है ये फोकल लेंथ के लिए एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है, रिक्वायर्ड फॉर फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द रेटिना. तो जो इमेज की जो एडजस्टमेंट है वो कौन करता है? क्रिस्टलाइन लेंस ही इमेज को हमारी एडजस्ट करता है, और फिर वो रेटिना में लाइट को स्ट्राइक करता है. एक और पार्ट जो है हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, एक्वस ह्यूमर. एज यू कैन सी इट इज़ द रीजन, it is a region which is situated between the cornea and the lens, isn't it? And the pupil, cornea and the pupil. Aqueous humor, as you can see our eyes is full of water. This is the aqueous humor. अब जैसे कि हमने देखा कि लाइट जो है एंटर कर चुकी है थ्रू द प्यूपिल एंड थ्रू द लेंस. अब वो स्ट्राइक करेगी रेटिना ही एक ऐसा रीजन है जो कि इमेज फॉर्म कराता है. रेटिना के पास ही वो फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं, जिनका की नाम होता है रॉड्स एंड कोन्स. जो 2 टाइप के सेल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं रेटिना में, जो कि हमारे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं.
फिर वहाँ से जो ये जो सेल्स हैं वो जाते हैं ऑप्टिक नर्व में, जो कि हमारे ब्रेन की तरफ ट्रैवल करती है और हमारी एक इमेज फॉर्म होके आती है, ठीक है। और अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये लास्ट जो रहेगा विट्रस चैम्बर, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एज यू कैन सी इट इज़ द रीजन बिटवीन द रेटिना एंड द लेंस। लेंस और रेटिना के बीच में जो रीजन है उसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। जो रॉड्स और कॉन्स जो रेटिना में जो सेल्स होते हैं, आइए एक एक करके उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एज यू कैन सी जो रॉड सेल है वो ट्वाइलाइट विजन प्रोवाइड करते हैं, स्कोप्टिक विजन, यानी कि अंधेरे में जो हमारा विजन आता है वो रॉड सेल्स की वजह से आता है। इसका मतलब क्या है, जो रात में जागने वाले एनिमल्स हैं उनके पास रॉड सेल्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जैसे कि बैट्स है और है आउल, यू नो दे हैव गॉट रॉड सेल्स मोर देन द कोन सेल्स. It contain purplish red protein called rhodopsin or visual purple, which contain a derivative of vitamin A. इसके पास कौन सी प्रोटीन है? rhodopsin है, पर्पल रेड कलर की है वो, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉन्स के बारे में। ये देखिए कॉन सेल्स जो हैं, जो कि दोनों के दोनों क्या हैं, फोटो रिसेप्टर सेल हैं, रेटिना में प्रेजेंट हैं। अब ये जो है ये डे लाइट प्रोवाइड करते हैं। डे लाइट में जो हमारा विजन है फोटोपिक विजन वो हमें प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हमारे ह्यूमंस के पास और भी जो एनिमल्स हैं जो डे लाइट में जागे होते हैं उनके पास कौन सेल्स की भरपूर मात्रा होती है और रॉड सेल थोड़े। चलिए थोड़ा एडिशनल और डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। ये जो इरिस जो है ना, ये पता क्या है, जो भी एज यू हैव सीन यू नो मेनी डिफरेंट आई कलर्स यू सी, किसी किसी का जो है इरिस जो होती है, लेंस जो होती है वो ना कौन से कलर की होती है, ब्लैक होती है, किसी किसी की होती है ब्राउन, किसी किसी की होती है ब्लू, विच आर रियली ना ब्लू आइज हिप्नोटाइज। सो जो कलर है हमारे आइज़ का वो हमें कौन देता है, इरिस। सो इट वेरीज विद डिफरेंट पीपल, राइट। और हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे सिलेरी मसल के बारे में, इज काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट। जो सिलेरी मसल है, आपको पता है अगर यही सिलेरी मसल वीक हो जाता है देन पीपल हैव टू वेयर स्पेक्टिकल्स, दे हैव टू वेयर स्पेक्स, यू नो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट। किसी किसी को देखने में प्रॉब्लम होती है, किसी को डिस्टेंट विजन हो जाता है, किसी को नियर बाय ऑब्जेक्ट का जो देखने की पावर है उसमें उनको हेडेक होने लग पड़ती है। स्टूडेंट्स को यूजुअली फिर एंड देन दे वेयर द लेंस विच यू नो करेक्ट्स देयर सिलेरी मसल। तो इट इज़ द यू नो टू चेंज द शेप ऑफ द आई लेंस, अब प्रोसेस कोल्ड एकोमोडेशन जो है वो भी सिलेरी मसल ही करता है। एकोमोडेशन की वजह से हमारी आई लेंस की शेप चेंज होती है और हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, डिस्टेंस वाले को भी और नियर बाय वाले को भी। उसको किसको मॉडिफाई करके, अपनी सिलेरी मसल को, ठीक है। और ये जो सिलेरी मसल अगर किसी की वीक हो गई है तो ऑब्वियसली उसको स्पेक्टिकल लगेगा। और यू नो अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप एक हेल्दी हैबिट्स अपनाएंगे, यू नो एक्सरसाइज, योगा, और उस स्पेक्टिकल को वेयर करके रखेंगे तो ओवर अ टाइम ये सिलेरी मसल जो है अपना रिपेयर हो जाती है और अपने ओल्ड शेप में वापस आ जाती है। फिर आपको स्पेक्टिकल जो है वो रिमूव हो जाती है। ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। I wore specs and then you know after I went for a checkup and they say that no, you don't need to wear the specs anymore. So it's a recoverable muscle. ये है सिलेरी मसल, ठीक है। और सिलेरी मसल का फंक्शन क्या है, ये एक्वस ह्यूमर को क्या करती है, एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करती है। आप लोगों के लिए इतना सारा नहीं है बट फिर भी आप एडिशनल है, आप सुन के अपने नॉलेज के लिए रख सकते हैं, ठीक है। एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करती है, ये रहा हमारा एक्वस ह्यूमर, जो कि क्या करता है, नरिश करता है कॉर्निया को और लेंस को, ठीक है। एक्वस ह्यूमर का काम है नरिश करना कॉर्निया को और लेंस को, ठीक है, कॉर्निया को और लेंस को। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।